Hello students. So today I am going to teach you motion in a vertical circle. Okay, I hope that you have a basic idea of circular motion, that there's a formula mv square by r that acts towards the center if a body is moving in a circular motion. Okay, so I assume that you have that idea, then you can continue. Okay, and that basic idea obviously every student will be having, those who got this circular motion. Okay, so let's start. Motion in vertical circle means what? कि vertical plane में we are rotating any body vertical. There is a horizontal circle like conical pendulum. It is horizontal circle ना, तो horizontal circular motion is also there and vertical is also there. So we are starting vertical. Now suppose the speed at this point in this direction is v. A body is tied with a string and it is rotating in this circular motion. So we have to calculate what will the tension at this instant. तो what it will be in this direction v इधर, तो इसका if I draw the free body ना, free body draw मतलब इस पे ही अगर हम बोले तो इधर एक t लग रहा होगा, t mg will be downward क्योंकि vertical plane है. अच्छा, now you remember one thing what I will use ना, I will use mv square by r जो तुम लोग सेंटर की तरफ मानता है ना, उसको अब हम बाहर मानेंगे mv square by r. I will assume outward and I will simply equate. That will give you the same, like if you assume इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अंदर में एक एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, तो t माइनस एम जी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, और यू कैन राइट इसको t इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर. तो अब हम यहाँ पे हर केस में यही करेंगे कि एम वी स्क्वायर बाई आर आई विल एज्यूम दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एम वी स्क्वायर बाई आर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट आई एम गोइंग टू एज्यूम. तो इधर एक और फोर्स क्या लग गया है, प्लस एम वी स्क्वायर बाई r. Or now this t will be equals to this because this is balancing in this direction t, in this direction mg plus mv square by r. So t will be equals to what? T will be equals to mg plus mv square by r. I hope you got it. mg will be there, vertical circle में mg will always be there. Okay, and mv square by r को you have to take the component. Always you take outer. Like in the next question, mg is acting in this direction, no? mg, and mv square by r will act in outward direction, in this direction mv square by r. Now t is acting in this direction, tension in the string. Now what we should do, अब क्या करें, mg इधर है तो mg को we need to break. तो there will be one component of mg in this direction ना, that is mg sin theta. ठीक है, and in this direction it will be mg cos theta. तो now you see t is in this direction and इधर कौन कौन है, mg cos theta plus mv square by r. तो t is balancing what, mg cos theta and mv square by r. What this mg sin theta is doing, अगर mg sin theta इधर है तो देखो वेलोसिटी के ऑपोजिट टेंजेंशियल, तो ये इट इज प्रोवाइडिंग at, लेकिन यहाँ पे at क्या है, निगेटिव हो जाएगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज निगेटिव है बिकॉज इट इज एक्टिंग अपोजिट टू द वेलोसिटी. तो यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट at, तो at इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा, ऐसा निगेटिव हो गया, निगेटिव. एंड टी क्या हो गया, टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी का कॉस वाला कॉम्पोनेंट. ठीक है, ऐसा हम लोग ब्रेक करेंगे. ओके, अच्छा, इन दिस केस व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट ना, वी नीड टू कैलकुलेट कि इफ मास इज रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट ना, तो जब स्ट्रिंग ऐसा होगा, ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग ऐसा आएगा, तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा ये हमको निकालना है. यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा, तो चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसको क्या करो, यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे आ गया. ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा ऐसा. ओके, अब देखो जब ये यहाँ से नीचे आया ऐसा करके सर्कुलर में, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो इसका स्पीड कुछ पहले एज्यूम कर लो कि इसका स्पीड यहाँ पे v है. ओके, एक तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है. तो अगर हम इस पॉइंट को a बोले, इस पॉइंट को b बोले और इसको हम रेफरेंस ले लिए, ये मेरा रेफरेंस है, यहाँ पे हम u को 0 मानेंगे. ठीक है, तो टोटल एनर्जी मतलब u एट a प्लस काइनेटिक एनर्जी एट a विल बी इक्वल्स टू u एट b प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b. ये होगा एनर्जी. नाउ यू सी, ए पॉइंट पे ये रिलीज किए तो व्हाट विल बी द स्पीड,
speed will be 0, u0. So u0 तो kinetic energy will be at a point, the kinetic energy will be 0, and potential energy के लिए you see it is at a distance L above. ये क्या होगा L, तो it is also L, तो potential energy will be what, it will be mgl. Okay, potential energy at B, it will be 0. What is the potential energy at that point? It will be 0 only na. Why? Because it is lying in the reference level only, so it will be 0 directly we can say. Okay, so I am writing that it will be potential energy 0 and kinetic energy will be half m v square. So v you will get under root 2gh. Clear? Is it clear? Now if I ask you to calculate the tension at this point, तो देखो कितना सिंपल है. इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट दैट व्हाट विल द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट विल बिकम वर्टिकल, तो यहाँ पे फ्री बॉडी से अगर हम यहाँ क्या लिखते हैं कि इफ आई एज्यूम दिस टू बी टी ना, तो टी में डाउनवर्ड में व्हाट इज एक्टिंग, डाउनवर्ड में एम जी इज एक्टिंग एंड वी है तो एक एम वी स्क्वायर बाई आर बी, जो देखो एकदम जस्ट इट इज रिटन इन द लेफ्ट दिस सेम थिंग. तो यू कैन कैलकुलेट द टेंशन, यू कैन कैलकुलेट द टेंशन. व्हाट इट विल बी, टी विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम बाई, अच्छा रेडियस तो एल माने ना, रेडियस इज एल ओनली, रेडियस इज एल, और v इज व्हाट रूट 2g, स्क्वायर विल बी 2gh. अरे यार ये यहाँ पे l होगा ना, इट विल बी l ओनली. ठीक है, तो इट विल बी ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी l. तो टेंशन व्हाट यू विल गेट टेंशन टू बी 3mg. टेंशन जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, टेंशन विल बी 3mg. इज इट क्लियर? अच्छा एक मेथड 2 भी है स्पीड निकालने का. मेथड 2 क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम. मेथड 2 विल बी, मेथड 2 जो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग लगाएंगे. तो वर्क कितना फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल भी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बोल दो, एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ यू सी वर्क डन बाई टेंशन, टेंशन suppose the bodies will be at this point, tension will be in this side, body at this point, tension will be in this side, body at this point, tension. So tension is always perpendicular na, tension is always perpendicular to the displacement. When the body is moving in this side, tension is in this side, body in this side, tension is in this side, body this side. So force and displacement are making 90 degree always, so tension will be 0. In the same way mv square by r is outer, dl will be in this direction. Again mv square by r will be out, dl will be in this side. Again mv square by r will be in this side, dl will be. So this 2 work done will be 0 always. Work done by tension and work done by mv square by r in a vertical circle, the work done will always be 0. You have to remember. So who is doing the work? Only mg. Now when it will move from this to this, so what is the work done by mg? In the direction of mg it displays by l. So mg into l, mg into l, and plus this is 0, this is 0, both the work done. Change in kinetic energy, so half mv square, initial was 0, so here also you will get v equals to root 2gl. I hope you got it, this part. Okay, now you see we need to calculate also a and b पे find relation between v and v. Suppose here speed is v, here it is miss, here it is u, here it is v, तो हम लोग को एक we need to calculate a relation between u and v. अब मैं क्या करूँगा, again I will use the same energy conservation. तो if I assume this to be the reference ना, and इसको हम h मान ले रहे हैं, sorry reference उसको नहीं मानेंगे, reference I will assume a यहाँ पे, that's why I'm writing यहाँ पे u 0 हो जाएगा इस reference पे. ओके तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, potential energy at a plus kinetic energy at a will be equals to potential energy at b plus kinetic energy at b. Potential energy at a 0, half m u square equals to potential energy at b m g h plus half m v square. इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो देखो ये आ जाएगा v square equals to u square minus 2gh. इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, v square equals to u square plus 2 into minus g into h. अब तुम ध्यान से देखो, इज इट द सेम काइनेमेटिक्स फॉर्मूला, v square equals to u square plus 2s. Are you getting? This thing is the same that kinematics में that we used. Okay, so what I will do ना,
कि आई विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला इन सर्कुलर मोशन. इफ द बॉडी इज मूविंग अप ना, तो ए पे आई विल यूज माइनस जी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी एच. देखो आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, आई विल टेक, बट फर्स्ट यू सी what I am trying to explain here. Like suppose a body is at this point, body is at this point, it is moving up na. Final is v, so I will write okay v square equals to initial is u square plus 2as. A क्या, a will be either plus g or minus g. If the body is moving up तो minus g, ये तो kinematics में we have seen, minus g into what is the distance between these 2 points, तो it is h. तो the same formula I have got here. ओके सो हियर यहाँ पे एल ये एच कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एच. इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एच, व्हाट आई कैन राइट कि दिस इज एल, दिस इज एल, तो इट विल बी एल कॉस थीटा. ये इफ आई टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस ओवर दिस, तो आई विल गेट एल कॉस थीटा एंड द कंप्लीट इज एल. तो एच विल बी व्हाट, एल माइनस एल कॉस थीटा. दिस इज एल, this is L cos theta. If I subtract na, so the value of H I am getting L into 1 minus cos theta. So you can substitute, you can get the relation. That is the simple thing. Okay, but not always I am not going to use this energy conservation. Okay, I will use this v square equals to u square plus 2s. A में minus g and s displacement will be the vertical displacement. Okay, you will get it. Just wait for few minutes. Okay, अच्छा, if I ask what is the tension at a point, tension at a point, तो हम क्या करेंगे, I will draw the FBT. tension at a point में जैसे a is this ना, a में u is in this side, ठीक है, तो tension you assume up. okay, FBT बनाओ, ये तो हर बार हो जाएगा यार, mg plus it will be mu square by l. तो the tension that you will get is what, mg plus mu square by l. ओके बी पे फिर से एक्सप्लेन कर दे, ऐसा करके बॉडी है तो एम जी विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. अच्छा वी इधर है तो इधर क्या लग जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई एल एंड टी इज इन दिस डायरेक्शन. ओके नाउ इफ दैट इज थीटा, दिस इज गिवन थीटा ना, सो दिस विल बी थीटा. तो एम जीज कॉस कॉम्पोनेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एम वी स्क्वायर बाई एल एंड साइन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके तो जो टेंशन होगा दैट व्हाट आई कैन राइट, I can write mv square by L plus mg cos theta. Clear? So now अगर मान लो u is given, we need to calculate v. एक बार ट्राई करो इसको. Okay, I hope you got the answer. ठीक है. Now first thing that I इसमें सिंपल क्या लगाएंगे, final is v square equals to u square plus 2 acceleration, body is moving up, तो acceleration will be minus g into h. अब h क्या होगा, h होगा the distance between this two, vertical distance between v and u. ठीक है, तो कैसे निकाले. now can you tell me what will be this length, it is L, it will be L cos 30 degree, it will be L sin 30 degree. are you getting? If I assume this to be L, तो ये कितना हो जाएगा, L cos 30 and this will be L sin 30. तो ये जो है ये है L sin 30 डिग्री. तो H कितना हो जाएगा, कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ H? H हो जाएगा L प्लस L sin 30 डिग्री. कैसे, ये L है और ये L sin 30, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, L प्लस L sin 30, तो ऐड करके लिख दो तो ये आ जाएगा 3L/2. बस हो गया आंसर. अब आने वाला है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू 3L/2. 2 गया तो v जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 3GL. यही आंसर है. दिस इज द आंसर ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u. ठीक है, तो u अगर मान लो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें कि इफ़, अगर हम तुमको बोल दें कि इफ़ u इज इक्वल्स टू रूट 10GL, हम नीचे में 10GL दिए, देन v, देन कैलकुलेट v जो कि उस पॉइंट पे 30 डिग्री, तो लगा देना यार, फॉर्मूला लगा दें. रूट 10GL का स्क्वायर तो 10GL माइनस 3GL, तो आ जाएगा रूट ओवर 7GL. क्लियर है.
ओके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मस्त प्रॉब्लम ये वाला, देखो सेम एकदम आसान प्रॉब्लम है। हमको v निकालना है इन टर्म्स ऑफ u गिवन है। फिर से हम सेम चीज़ नहीं करेंगे, बोलो सेम ही तो लगाएंगे। फाइनल स्पीड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, बॉडी ऊपर गया ना, यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है तो बॉडी ऊपर ही तो गया, तो क्या लिखेंगे -g इनटू इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो तो यार बच्चा से ही पूछेंगे बता देगा, ये तो डायमीटर है तो 2l, ये जो आया ये 2l है, तो इसका जो h हो जाएगा वो हो गया 2l। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 2l, तो v आ जाएगा √u स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है कि अगर टेंशन ए पॉइंट पे T0 है, तो ए पॉइंट का टेंशन अगर देखो, ये तो हम बहुत बार किए ना यार, इस पॉइंट का जो टेंशन होगा क्या हो जाएगा mu स्क्वायर बाई एल प्लस mg। तो हम क्या उसको डायरेक्ट लिख दें, क्या तुम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेगा, T0 इक्वल्स टू mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे फिर से हम बता दे रहे, इधर t डाउनवर्ड mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल। ओके, तो यही तो होगा। अच्छा बी पॉइंट पे ध्यान से देखो, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका एफबीडीएम अभी तक नहीं बना है, इसलिए अभी हम बनाएंगे। बी पॉइंट पे टेंशन विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, बी पॉइंट पे ऐसा, इधर स्पीड इधर है ना v। अच्छा टेंशन डाउन है, mg डाउन, तो ऊपर कौन लगा mv स्क्वायर बाई एल, दिस इज पॉइंट बी। आर यू गेटिंग? बाहर सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर लगेगा, तो mv स्क्वायर बाई एल हमेशा क्या होगा ना, ऐसा बाहर लगेगा। जहां पे भी तुम फ्री बॉडी बना रहा है, यू सिंपली ज्वाइन अ लाइन फ्रॉम सेंटर एंड यू टेक इट रेडियली आउटवर्ड, दैट विल द डायरेक्शन ऑफ mv स्क्वायर बाई आर, जो भी। तो बी पॉइंट पे इट विल बी आउटवर्ड। अच्छा mg तो हर जगह डाउन, mg डाउन, mg डाउन, कहीं पे भी लेना है तो mg विल बी डाउन। और t क्या होगा, t विल एक्ट टूवर्ड द सेंटर, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग का टेंशन है। ओके, ये बी पॉइंट का बात हुआ। अब हम यहाँ पे क्या लिखें बताओ, यहाँ पे हम लिखेंगे t प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई एल, लिख सकते हैं। अच्छा v को पुट करो √u स्क्वायर माइनस 4gl, v को यहाँ से जो v आया है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दो, इस v को उसका स्क्वायर करके, जैसे यहाँ पे हम v स्क्वायर लिखे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 4gl, उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या आ रहा है t प्लस mg इज इक्वल्स टू m बाई एल, और ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 4gl। तो क्या आ जाएगा t प्लस mg इज इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाई एल माइनस 4mg। ठीक है, अच्छा T0 का वैल्यू क्या है, या तो mu स्क्वायर बाई एल का वैल्यू क्या है, T0 माइनस mg, यहाँ पे पुट कर दो T0 माइनस mg, यहाँ पे पुट कर दो T0 माइनस mg, तो हो जाएगा T0 माइनस 4mg, और एक mg इधर से आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो जब वैसा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो पता है क्या हो जाएगा, T0 माइनस 6mg इसका आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी T0 माइनस 6mg, t at point b will be equals to T0 माइनस 6mg। तो कई बार ये भी पूछता है, अच्छा इन दोनों में मैक्सिमम टेंशन पता है सबसे डाउन में होता है, तो ये जो T0 है ना, ये एक्चुअल में मैक्सिमम टेंशन है और मिनिमम होता है बी पे। तो कई बार तुमको सर्कुलर मोशन में ऐसा भी दिखेगा कि प्रूव दैट टी मैक्स माइनस टी मिन इक्वल्स टू 6mg, प्रूव दैट टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल्स टू 6mg। तो यहीं से तो प्रूफ हो गया ना, क्या ये टीबी जो है ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो T0 माइनस टीबी 6mg तो आएगा ना, तो यहाँ से प्रूफ हो गया वो। देखो टी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, लिख लो एट ए, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट, और टी मिनिमम एट बी। क्लियर है ये? ठीक है, हाँ अब इस पे आता है, अब ये आराम से तुमको क्लैरिटी आएगा कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि हम क्या यहाँ पे मिनिमम स्पीड देना कि ये जो भी यहाँ पे मास होगा वो सर्कल कंप्लीट कर ले। यहाँ पे अगर मान लो हम इसको क्या एक u वैल्यू दें, ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ l मान लो, ठीक है, यहाँ पे कितना मिनिमम स्पीड दे कि ये सर्कल ऐसा करके कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो अगर वहाँ पे u है ना, तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, पहले कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। आंसर तो तुमको पता है √5gl, सबको पता है,
लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है देखो, अब इसको हम एक्चुअल में हम तेरे फिजिकल में तो है नहीं, फिजिकल क्लासरूम में तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या होता है देखो, अगर तुम बहुत कम स्पीड दिया ना तो ऐसा करके ऊपर जाएगा, फिर ऐसा ऑसिलेट करेगा। थोड़ा और ज़्यादा दिया तो इधर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। लेकिन एक बार जो इस लाइन को क्रॉस किया ना तो क्या होगा, उसके बाद अगर तुम कम देगा ना, मान ली यहाँ पे स्लैक कर गया, स्लैक मतलब यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया स्ट्रिंग का, तो उसका ये प्रोजेक्टाइल करके नीचे आ जाएगा। ऐसा होता भी है ना, एक स्ट्रिंग को तुम बांधो और वर्टिकल सर्कल में घुमाना स्टार्ट करो तो ये यहाँ पे स्लैक करेगा, उसका प्रोजेक्टाइल करके नीचे आ जाएगा। तो तुम अगर यहाँ से यहाँ तक इसको भेजना चाह रहा है देखो, तो क्या होना चाहिए ना कि किसी भी पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक ना करे। स्लैक मतलब होता है टेंशन जीरो। टेंशन जीरो हुआ ना तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल गया उस पर एक ही तो फोर्स लग रहा है ना यार, टेंशन, तभी तो सर्कल में है। जैसे मान लो इसको घुमाते घुमाते यहाँ से टूट जाएगा तो वो तो भाई गया, इधर टेंजेंशियल भाग जाएगा। तो कौन इसको बचा के रखा है सर्कल में घुमाने के लिए, कौन बचाया हुआ है, टेंशन। तो टेंशन अगर जीरो हुआ तो ये सर्कुलर मोशन नहीं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा उसके बाद। तो हम मेरा एम क्या है कि टेंशन एट ईच पॉइंट, टेंशन एट ईच पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन should be greater than zero, should be greater than zero। तो अगर हम ऐसा कुछ कर लिए तो ये जो पार्टिकल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा सर्कल। टेंशन अगर रहा, स्ट्रिंग हमेशा खींचा हुआ रहना चाहिए, स्ट्रिंग शुड बी टाइट। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट ना। अच्छा, कैन यू टेल मी इन दिस वर्टिकल सर्कल एट विच पॉइंट द टेंशन विल बी मिनिमम? Can you tell me? Obviously at this point. So if at this point tension will be greater than zero, then we can say कि at each and every point the tension will be greater than zero. Like suppose if there are 50 students in a classroom and the passing marks is equals to 33, and the student who got the least marks, that mark is greater than 33, means the student who got the least mark is 36. So the student that is getting the least marks, that is also this mark is also greater than the passing marks. It means we can say that all the students of the class have passed. So that is the thing I am using, कि the minimum tension that is possible, if that is greater than zero, it means the tension at each and every point will be greater than zero. That is the concept we are equating. देखो, so can you tell me what will the speed at this point? Yes you can, yes you can. देखो यहाँ पे अंडर रूट, इफ u at this point, तो at this point it will be under root of u square minus 4gl. Okay, clear? Now can you draw the FBD? Can you draw the FBD at the topmost point? Means इस point को if I tell B, if I tell A, तो we need to draw the FBD. तो tension will be acting down ना, this is the V in this direction, that is under root of u square minus 4gl. Okay, tension will be acting down, mg will be acting down, and upward will be which force? m v square by l. V is this. So अब यहाँ पे one small thing that you have to notice कि if the tension at this point will become zero also ना, then also it will complete the circular motion. Why? Because if it will be zero na, like suppose it is coming from this side, exactly at this point it will become zero, so it will not move down like this. It due to inertia it will move in this direction, and once it will move in this direction na, again tension will be non-zero, so it will complete the circle. Listen what I told. If exactly at the topmost point tension will be zero, so now you will say sir it will slack. No, it will not slack. It will not slack because inertia is there na, तो it will move in this direction only, तो it will complete the circle. तो minimum के लिए what we can say कि T minimum should be equal to be zero कर देना, then also it will complete at the topmost point. तो what I am going to do, I can write T plus mg, the balancing, equals to mv square by l, but for minimum I am equating it to zero. ठीक है, तो mg will be equals to m by l. Now v
वी स्क्वायर यू डू तो यू विल गेट यू स्क्वायर माइनस 4gl, यहाँ पुट करो तो प्लस m बाई एल इंटू वी स्क्वायर माइनस 4gl। ओके, सो m को कट कर दे, रुक जाओ, g इक्वल्स टू 1 बाई एल प्लस वी स्क्वायर बाई एल माइनस 4g। यार कुछ तो हम क्या गलती कर दी यार, एम जी इक्वल्स टू एम वी बाक, एम जी इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू वी स्क्वायर विल बी यू स्क्वायर माइनस 4gl। यस, एम कट कर दो तो gl विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 4gl। तो u मिनिमम जो आया दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 5gl। ये देखो, हैव यू गॉट? अच्छा, इफ एट दिस पॉइंट इट इज रूट 5gl तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितना होना चाहिए? v एट टॉप मिनिमम वैल्यू शुड बी, पुट कर दो, इफ दिस इज u यहाँ पे पुट करो तो 5gl माइनस 4gl रूट gl। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इफ यू वांट टू कैलकुलेट तो द वैल्यू विल बी रूट gl, दिस यू सी इट विल बी रूट g इंटू एल। क्लियर? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5gl, तब ये कंप्लीट करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट gl। ओके, चलो आई गेस दिस इज क्लियर। हाँ, ये एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाली इस क्वेश्चन में कि मान लो अगर हम रूट 8gl दिए तो क्या ये कंप्लीट करने वाला है? हाँ बिल्कुल करेगा, 5gl से ज़्यादा है। तो व्हाट विल द स्पीड एट बी सी डी एंड द टेंशन एट दिस पॉइंट्स? ओके, लेट मी सॉल्व फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे स्पीड यू एज्यूम इट विल बी वी बी, एट दिस पॉइंट इट विल बी वी सी, एट दिस पॉइंट इट विल बी वी डी। ओके, तो वी बी, अब व्हाट फॉर्मूला आई विल अप्लाई? स्पीड में ऑलवेज आई विल अप्लाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल इन ए एंड बी फाइनल विल बी वी बी ना, तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड रूट 8gl स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2, बॉडी इज मूविंग अप तो माइनस जी इंटू what is the vertical distance between this two? L, put कर दो तो VB what you will get 8gl minus 2gl का 6gl। तुम लोग का आया आंसर? अच्छा, B पे इफ आई ड्रॉ द FBD, B पे दिस इज सपोज पॉइंट B, तो टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस हॉरिजॉन्टल ना, mg विल बी डाउनवर्ड एंड mv स्क्वायर बाई आर m vb स्क्वायर बाई एल विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड v जो है वो ऐसा है, v इधर है vb, तो t विल बी इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाई एल ओनली ना। तो व्हाट दिस mg इज डूइंग? mg इज प्रोवाइडिंग द नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आई टोल्ड यू ना। तो एट दिस पॉइंट इफ एनीवन आस्क्स व्हाट इज द टेंजेंशियल, तो at विल बी माइनस mg, फोर्स बाई मास, तो माइनस g at this point at। okay, tension at this b point will be equals to m into vb square by l because mg will not have any component in horizontal direction, so it will not play any role। now vb को you put root 6gl तो आ जाएगा 6mg, answer you will get 6mg। clear? tb is equals to 6mg। तो देखो कैसे याद रखना है, यहाँ पे जो भी रूट का आएगा, जैसे रूट यहाँ 7gl आता तो यहाँ का टेंशन पता है क्या हो जाता? 7mg हो जाता। और बॉटम उस पॉइंट पे क्या कॉन्सेप्ट है, जितना आया उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ए पे तुम टेंशन निकालोगे ना तो 9mg आ जाएगा, निकाल के देखो। अच्छा, अब हम लोग क्या आते हैं फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो सी पॉइंट पे स्पीड क्या है? वी सी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर रूट 8gl का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू ए इज माइनस जी इंटू लेंथ। अच्छा, यहाँ से यहाँ का वर्टिकल डिस्टेंस जो हाइट होगा वो 2l है, तो यहाँ पे हम 2l पुट कर देंगे। तो ये कितना आ गया यार? 8 माइनस 4gl का अंडर रूट, ठीक है, vc। अब सी पॉइंट पे देखो, इधर स्पीड था, नीचे क्या है t,
और नीचे क्या है mg, पॉइंट सी पे टेंशन विल बी डाउन, mg विल बी डाउन, अपवर्ड विल बी mv स्क्वायर बाई, तो अपवर्ड कौन लग रहा है mvc स्क्वायर बाई l, तो क्या हो जाएगा t विल बी इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाई l माइनस mg, तो यहाँ पे एक घट जाता है जिसका आंसर आ जाएगा 3mg। यू पुट ना दिस √4gl यू पुट एट दिस पॉइंट, जिसमें एक डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टेंशन आ जाएगा 9mg, यहाँ पे उतना ही रहेगा, तो 6mg है तो यहाँ पे आ जाएगा 6mg आ जाएगा, 6gl था ना, यहाँ पे √4gl था तो यहाँ पे घट जाएगा तो 3mg हो जाएगा। अच्छा सेम vd भी वही हो जाएगा, तो सिमेट्री से vd को हम क्या बोल सकते हैं, vd का जो स्पीड आएगा वही आएगा जो b का है, इन दोनों का सेम आएगा, ठीक है, तो vd विल बी अगेन इक्वल टू √6gl। अच्छा उस पॉइंट का टेंशन भी td अगर यहाँ पे लिखे तो 6mg हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा c। अब तुमको एक चीज़ ध्यान रखना है ना कि स्पीड के टर्म में यहाँ पे जो भी है ना वो दो दो घटाते जाओ, कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इससे और 2 घटा दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, स्पीड आ गया तुरंत एक लाइन में। टेंशन में क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाले स्पीड में जो 6 आया ना कोफिशिएंट, तो 6mg लिख दो, यहाँ पे +1 कर दो तो 9mg लिख दो, यहाँ पे -1 कर दो तो 3mg लिख लो, तुम करके देख लो यार, ये तीनों ही तो आएगा ना। ओके तो एक क्वेश्चन देते हैं उसको तुरंत सॉल्व करो, तुरंत मतलब तुरंत। देखो यहाँ पे ऐसा कल को मान लो एक सर्कल दिया हुआ है और एग्जैक्टली बॉटम मोस्ट पे क्या स्पीड है, जैसे यहाँ पे ऐसा करके हम कर ले, यहाँ पे सपोज स्पीड दिया हुआ है √15gl और सब जगह स्पीड पूछा, सब जगह टेंशन पूछा, ठीक है, तो तुरंत यार सॉल्व कर लिया, सॉल्व करो उसके बाद मिलाना। तो अब हम बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कम कर दे, 15 है तो ये √13gl हो जाएगा, 13 है यहाँ पे √11gl हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा ना नीचे, तो ये सेम कर √13gl ही हो जाएगा, टेंजेंशियल ऑलवेज रहेगा। अच्छा टेंशन पूछे सर, बता देंगे 15 है, इसमें +1 कर दो, टी में यहाँ पे +1 लिख ले, याद रहेगा, तो 15 + 1 16mg, यहाँ पे टेंशन सेम रहेगा 13mg, निकाल के देख लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे घट जाएगा तो t -1 लिख लो, तो 11 है ना, कोफिशिएंट 11 है तो इट विल बी 10mg, और यहाँ पे तो वही होगा जो उस हॉरिजॉन्टल पे हो रहा है, तो यहाँ पे 13mg। ओके अच्छा यहाँ पे भी तुम डिफरेंस देखो, 10mg 16mg, डिफरेंस कितने का आया, 6mg का आया, हमेशा टॉप पर बॉटम में 6mg का ही डिफरेंस रहेगा ऑलवेज। यहाँ पे लिख लो टी बॉटम माइनस टी टॉप टेंशन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 6mg, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देखना चाहते हो, यहाँ पे 9mg आया था और ऊपर में 3mg आया था, तो बॉटम माइनस टॉप ऑलवेज 6mg रहेगा, और हम यहाँ पे वो प्रूफ करने भी तुमको बोले थे ये चीज़, देखो तो ऑलवेज। ओके चलो आई होप यहाँ से थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको देख लो अच्छे से। चलो ठीक है फिर।